Hello, my dear student of Standard 8, and today we are going to start chapter number 6, Effect of British Rule in India. So, friends, the story begins like this. Mother Aruna is reading the newspaper and she is habitual to be read loudly. जिसे हम लोग बोल बोल के पढ़ते हैं. So, while he is reading loudly, the revolution in Libya, her daughter Purva, who is doing her homework, she just asked with the curiosity that what is revolt, why people do revolt. So her mother Aruna replied her like that: when people are not happy with the government, when they are not happy uh, with the policies of the government, even the taxes also, when they are not getting jobs, if they are losing jobs, then people across the country revolt against the government. Such kind of revolution is going on in the Libya, but the same kind of revolution is also going on in India when the Britishers rules in our country. Okay, so we had heard that in our previous chapter that economically India is a very powerful country. Even the Mughals, the last Mughal Aurangzeb, which we had learned in standard 7, could not weaken the Indian systems, and people were still happy and prosperous. But due to the British rule in India about 200 years, all the peasant farmers become the poor. India is the only country which provide raw material to the England, and uh, and England become prosperous through it. So friends, a question arises in your mind that what is raw material? Let's see. Oh, now here is the first question. What do you mean by raw material? Okay. Second, give some example of the raw material. Done. Make a list of the raw material supplied in your village. Okay, done. And make a list of the product prepared from the raw material and the place to which they are supplied. So friends, let me give you a small example so you get better idea. See friends, suppose आप एक फार्मर हो एंड यू आर अ फार्मर विद द यू आर ग्रोइंग लाइक शुगर केन. आप एक शुगर केन ग्रो करते हो एंड अगर वो शुगर केन आप जब ग्रो करते हो तो आप उसको मतलब रख के फैक्ट्री में दे के आओगे, और यू कैन से इंडस्ट्री ऑल्सो. एंड वो लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे. या तो वो उसकी चीनी बनाएंगे, शुगर, या उसकी जैगरी बनाएंगे, उसका गुड़ बनाएंगे. ओके, सेम थिंग हैपन विद द कॉटन ऑल्सो. आप कॉटन का प्लांट ग्रो करते हो, फिर कॉटन को हार्वेस्ट करके सेल कर देते हो. तो कॉटन के पहले वो लोग थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से फिर वो लोग क्लोथ, मैट्रेसेस, बेड शीट्स, कुछ भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट आंसर मिल गया. रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन एंड शुगर कैन. आई हैड गिवन द एग्जाम्पल. तो आपके गांव में क्या क्या ग्रो होता है, यू हैव टू मेक आउट अ लिस्ट. ओके, एंड इंडिया इज जस्ट अ कंट्री जो उनको सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था. ना उसके नीचे आ जाते हैं. कंडीशन ऑफ प्लेजेंट एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सो we in our earlier chapter we had studied about the battle of Buxar. So after the battle of Buxar and Britishers, so the Britishers got the Diwani right. So now they can directly took that control over the states, and they can collect the taxes from the people. So uh, the farmers who are growing sugar cane, say for example cotton, all kinds of things, the Britishers purchased them but at a very low price. And what they does, they took it in the England and processed them, and again sell it to the India and all parts of the world by big margin. So ऐसा होता था यूजुअली. एंड इवन अनजस्ट रेवेन्यू कलेक्शन जो था, इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस हमसे कलेक्ट करते थे. सपोज़ हम लोग कहीं बाहर होटल खाना खाने जा रहे हैं, लॉकडाउन में तो भी नहीं जाना चाहिए, बट सपोज़ 1000 रुपीज़ का बिल बनता है. 1000 रुपीज़ प्लस GST 5%, तो हमको 1050 रुपीज़ पे करना आता है. बट इमेजिन 75% टैक्स होगा तो वी यूज़ टू पे 1750. सो ब्रिटिशर्स यूज़ टू डू दिस. वो उतना ज़्यादा हमसे टैक्स कलेक्ट करते थे. हमारी गवर्नमेंट को नो डाउट पैसे की ज़रूरत होती है, टैक्स कलेक्ट करना चाहिए 50 रुपीज़, बट यहाँ पे 50 रुपीज़ है और ब्रिटिशर्स के टाइम पे 750 रुपीज़ लिए जाते थे. सो यू कैन इमेजिन कि कितना हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. नाउ इवन समटाइम्स जब उनके पास पैसे भी नहीं होते थे तो भी उनको लैंड रेवेन्यू का टैक्स पे करना पड़ता था. एंड फार्मर्स, उनको अपने घर की ज्वेलरी सेल करनी पड़ती थी. दे आर सपोज टू सेल देयर ज्वेलरी
इवन दे आर सपोज टू, उनको अपना घर गिरवी रखना पड़ता था, इवन अपने खेत तक उनको बेचने पड़ते थे. ओके. एंड पीपल, व्हेन जब प्रॉब्लम आती है ना तो चारों तरफ से आती है. देयर वॉज अ फेमाइन इन द ईयर 1770. 1 minute. सो वेर लैक्स ऑफ पीपल वेर डाइड ड्यू टू द स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब भूख से. बरसात नहीं आती है तो पानी नहीं होता है नदियों में, एंड पानी नहीं होगा तो हम लोग अपना काम नहीं चला सकते, है ना. कंपेयर टूडेज कंडीशन, आज लोग खा खा के मर रहे हैं, ज़्यादा खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया. सो आजकल तो फेमाइन होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े डैम बना लिए हैं. बट 1770 में मैंने गूगल किया था, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग मारे गए थे. पॉपुलेशन का कुछ 7 to 8% थी. इतने सारे लोग मर गए थे ड्यू टू डेट फेमाइन. ओके. सो आफ्टर डेट द ब्रिटिश गवर्नर कॉर्नवालिस, ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक परमानेंट सेटल एक्ट बनाया था, जिसके कारण अब वो ब्रिटिशर्स मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है. डेट इज ऑन द एनुअल बेसिस. एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने एट एवरी विलेजेस दे अपॉइंट सम कलेक्टर. एंड वो कलेक्टर क्या करेंगे, सारे फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर देंगे. इनका उनका जो भी टैक्स का मार्जिन रहा होगा, से फॉर एग्जांपल अगर एक ज़मींदार या कलेक्टर या लैंड रेवेन्यू 1 लाख का कलेक्शन ला के देता है तो 3% और 4%, 3 और 4,000 उनको कमीशन मिल जाएगा. बट स्टिल स्टारवेशन हो रहा है, लेकिन इनको कुछ नहीं पड़ी है. ओके. इवन हमारे गांव में पहले क्या होता था कि जो सरपंच था वो सब एज ए जज काम करता था. सो उन्होंने इसी कलेक्टर को ही सब जजमेंट का काम दे दिया. सो उन्होंने हमारी जो विलेज सिस्टम थी ना उसको भी उन्होंने पूरा थ्रेश कर दिया. ओके. एंड फार्मर्स जो बहुत हार्ड वर्क करते थे, पहले अपने खेतों पे काम करते थे, अब वो खुद उसी खेत पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो खेत भी उनके नहीं रहे. ओके. सो थिंक यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रेवेन्यू. से आपके पास जितनी ज़मीन होती है आपको उतना टैक्स पे करना पड़ता है. ओके. इफ़ फेमाइन अकर इन द मॉडर्न टाइम्स द पीपल सफ़र लेस, वाई डिड दे सफ़र मोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. सी पहले आज के टाइम पे अगर फेमाइन होता है तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी कुछ साल पहले महाराष्ट्र में फेमाइन हुआ था. सो वहाँ के लोग, कुछ लोग होते हैं जो माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं टेम्पररी पर्पज़ के लिए. कुछ लोग होते हैं जो पानी की बोतल्स परचेस कर लेंगे, एटलीस्ट प्यास से तो नहीं मरेंगे. और इवन और भी कम पड़ेगी तो गवर्नमेंट ट्रेन से, मतलब ड्यू टू द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थ्रू ट्रेन वो लोग फटाफट पानी सप्लाई कर सकते हैं. सो मॉडर्न टाइम में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. पर पहले के टाइम पे क्यों इतनी प्रॉब्लम होती थी, तब डैम नहीं होते थे. ओके. सो आज जो डैम होते हैं उससे हमको मतलब पानी मिल जाता है. अगर 2-3 साल तक बरसात ना हो तो भी काम चल जाएगा, मगर लोग प्यास से नहीं मरेंगे. ओके. सो वो पहले के टाइम पे होता था, अब नहीं होता है. So you can see it's a picture of the 6.1 improvised present. Okay, so these are the people, इनके पास कुछ काम नहीं है और बोर हो रहे हैं. ओके. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस का फ़ोटो दिया गया है. नाउ इफेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ. सो वॉरेन हेस्टिंग ने ये कलेक्टर अपॉइंट्स किए थे, एंड जो जज का काम भी कर रहे थे उन्होंने हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिश कर दिया था. जो हमारे विलेज, जो एक स्मॉल रिपब्लिक हुआ करते थे, नाउ अब वो जो हमारे कंट्री का बैकबोन हुआ करते थे, उन्होंने उस पर सीधा अटैक किया. एंड ये जो हमारा विलेज सिस्टम था, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से भी पहले का था. ओके. अगेन आई एम गोइंग टू द रॉन्ग साइड. सो आफ्टर डेट द ब्रिटिशर्स फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. ओके. सो इवन जो लोग थे ना इंडिया के, ये भी खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स से. इवन ये लोग भी सोच रहे हैं कि ये ना ब्रिटिशर्स जानबूझ के अपना क्रिश्चियन रिलीजन स्प्रेड कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल, अगर आप हिंदू, मुस्लिम या सिख रिलीजन से हो तो यू आर सपोज टू पे 60% ऑफ टैक्सेस. लेकिन अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हो तो यू आर सपोज टू पे ओनली 20 to 25%. ये मतलब इस तरह के कुछ स्कीम्स ला के ये लोग लोगों को जानबूझ के क्रिश्चियन रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करते थे. ओके. एंड इससे मतलब इंडिया के लोग बहुत खुश थे, स्पेशली जो हमारे साधु महात्मा होते हैं ब्रिटिशर्स में, जो मुस्लिम्स में जो मौलवीस होते हैं, इन लोगों को उससे बहुत चिढ़ थी. एंड इवन ब्रिटिशर्स जो मिलिट्री और जो रेलवे सिस्टम लाए थे, ये भी इनिशियली इंडिया के लोगों को पसंद नहीं आया था. इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन आगरा दे पास्ड अ लॉ, एंड अंडर दैट लॉ एवरी इंडियन इज सपोज टू सैल्यूट लाइक दिस टू ब्रिटिशर्स.
इमेजिन करो, आपको कोई भी गोरी स्किन वाला ब्रिटिशर दिया तो आपको उसको सैल्यूट करना है। अगर आप ये नहीं करते हो देन आप पे पेनल्टी होगी। ओके, नाउअडेज मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और मास्क नहीं पहना तो 200 रुपीज़ पेनल्टी लग जाती है एट पब्लिक प्लेसेज है। सो समथिंग लाइक डैट, आप सैल्यूट नहीं करोगे तो फाइन। तो इससे मतलब लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया है ना। हम तो अभी समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ने हमारे अच्छे के लिए किया है, बट उस टाइम पे लोगों को गुस्सा आ गया कि हम भी, और एंगर के सेंटीमेंट से वो मतलब और बढ़ने लग गए। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सो जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी उसके कारण क्या हुआ, इंडिया का जो पूरा जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री थी पूरी डिमोलिश हो गई। उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे ट्रेड पे बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज किए थे ताकि हमारा सामान बहुत महंगा हो जाए, एंड ब्रिटिशर्स बहुत कम प्राइस में उसको सेल कर रहे थे। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भी उनको बेनिफिट मिला। ओके, सो इंडिया की कौन सी कमोडिटी थी उस टाइम पे, जूट, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स वेर हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। इवन द मुस्लिन, एक सॉफ्ट कपड़ा आता है ऑफ ढाका, इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड फेमस। अपार्ट फ्रॉम दिस सम कमोडिटीज़ लाइक टेक्सटाइल कमोडिटीज़, सॉल्ट, सल्फेट, शुगर, ये भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांड में था। सो इनिशियली व्हाट हैपन, बिफोर द ब्रिटिशर्स अराइव, हमारे देश में से सामान बाहर जाता था तो हमको बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज में मिलता था। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल चीज़ें, थिंग्स गॉट रिवर्स्ड, है ना, चीज़ें उल्टी हो गई। सामान भी जा रहा है, गोल्ड सिल्वर भी जा रहा है। सो जब हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है तो कंगाली हो जाएंगे। ओके, सो द होल सिनारियो चेंज एज द ब्रिटिश रूल इम्प्लीमेंटेड। सो ब्रिटिश रूल इम्प्लीमेंट के कारण बहुत कुछ हुआ। अकॉर्डिंग टू दैम they took 500 crores of rupees standard only from the Bengal during that rule. Just imagine करो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो ना, तो उनको पूछेगा कि घी 1 किलो, उनके टाइम पे 1 किलो घी कितने का आता था, मिल्क कितना आता था। इवन आई यूज टू रिमेंबर इन 1991 5-6 रुपीज़ की अमूल गोल्ड की एक पैकेट आता था, जो भी 28-29 का है। बहुत दिन से मैंने लेने नहीं गया हूँ तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट अप्रोक्सीमेटली इतना तो होगा। सो इमेजिन करो आज से 200 साल पहले, एंड उस टाइम पे दे हैड टू 500 करोड़ ऑफ रुपीज़। समझ लो कि उन्होंने इंडिया को कितना लूटा होगा। ओके, थिंग्स टू नो, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टुडे टू टॉक अबाउट लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़, फाइंड आउट द ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, जो मैंने आपको भी एक्टिविटी बताई थी वही है। सो यू कैन सी थिंग्स टू नो के नीचे वाले पैराग्राफ में, with the help of the new raw material produced in India, money collected from the India, the business and the industry in the England prosperous, है ना। तो जो भी रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, एंड इससे बेनिफिट किसको मिल रहा है, इंग्लैंड को मिल रहा है। पैसे अमीर कौन बन रहा है, इंग्लैंड बन रहा है। सो इंडिया का खून चूस के ब्रिटिशर्स अमीर बन गए। एनी हाउ, and they had put taxes, and here they are seeing it some commodity they are putting taxes up to 80%. ओके, सो इंडिया का सामान ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, एंड इंडियन इंडस्ट्री कांट कम्पीट देम, एंड कम्प्लीटली डिमोलिश हो जाएगी। इवन हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, फॉर एग्जांपल ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग, ये भी कम्प्लीटली रूइंड हो जाती है। और लैक्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अब ये जॉबलेस हो गए हैं, और जब लोगों के पास जॉब नहीं होते हैं तो वो पुअर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ कॉटेज इंडस्ट्री का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है। नाउ थिंक व्हाट कॉटेज इंडस्ट्री कैन बी सीन एट द विलेज लेवल एट द प्रेजेंट टाइम्स। वेल, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट नाउ। नाउ जैसे ही अब नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं, डेट इज़ द विलियम बेंटिक। ही इज़ ए लिबरल थिंक ऑफ माइंड। ओके, ही नो एवरीथिंग कि इंडिया के लोग हमसे ज़्यादा खुश नहीं है। इवन हमको सॉल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है उनको पता था। इवन ही ऑल्सो लाइक डैट कि इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें सही नहीं है ना। सती सिस्टम हो गया, बच्ची अगर नहीं चाहिए तो उसको एक बाउल में मिल्क भर के उसको डुबा देते थे, दूध पीते जिसको कहते थे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया के अंदर सही नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको सही किया। एंड इवन ही इज़ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सम ऑफ द इंडियन ऑल्सो, लाइक राजा राम मोहन रॉय। सो उन लोगों ने सब किया, एंड सती सिस्टम उन्होंने कब एबॉलिश किया था, 1829 को। ओके, सो इंडिया के अंदर से कुछ कुछ ख़राब चीज़ें रिमूव होने लगी, और ब्रिटिशर्स नाउ दे आर टेकिंग टुक पार्ट इन अवर सोशल एक्टिविटी, है ना।
वो इंडिया के अंदर ऐसा बताना चाहता है कि वी आर वर्किंग फॉर यू एंड वी आर फॉर यू। सो जैसे ही इंडिया के अंदर उनकी क्रेडिट बन जाती है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू रूल इन इंडिया। इवन उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर फॉर द एजुकेशन, जो उन्होंने कभी स्पेंड किया ही नहीं। ओके, बट आफ्टर फाइनली एक एजुकेशन कमिटी फॉर्म्ड हुई अंडर विलियम बेंटिक एंड इन द ईयर 1834 लॉर्ड मकॉली हैड पास द एट इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। नाउ थिंक ऑफ योर सेल्फ, उनको इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? नाउ ब्रिटिशर्स, नाउ इंग्लैंड एक छोटा सा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। कंट्रोल करने के लिए उनको ज़्यादा लोग चाहिए, एंड अगर उनको इंग्लिश आती हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो अगर ऐसे ही लोग इंडिया में मिल जाएँ तो उन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया कि हमको बस उनके इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना है। ओके, एंड ताकि उनको एडवांटेज मिले, उनको तो बस बेटे बिटाई पैसे का कलेक्शन आते रहना चाहिए। ओके, सो 1834 इज़ द ईयर जब उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। एंड इसका विरोध महात्मा गांधी जी भी करते थे, एंड उन्होंने कुछ कहा था। क्या कहा था? लेट मी रीड। टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज टू एनस्लेव देम, डेट बाय रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड नेशन। अगर हम लोग उनकी एजुकेशन, हम अपनी पुरानी परंपरा है जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उसको छोड़ के अगर हम लोग इंग्लिश एजुकेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, मीन्स हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। ओके, एंड लोग आज तक समझते ही नहीं है एंड ऑल दैट। सो दिस इज हाउ, एंड थिंक वाई डिड मकॉले इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एजुकेशन डेट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस। सो ये जो टाइम था ना, इट वॉज अ सम काइंड ऑफ इन्वेंशन इज गोइंग ऑन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इसमें से ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट मिले, कम्युनिकेशन का बेनिफिट मिले, तो इस बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चल रही थी। इसी बीच इंडिया के बीच में स्टार्ट की गई रेलवे। ओके, द फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड बिटवीन द मुंबई टू थाने इन द ईयर 1853, एंड ये ब्रिटिशर्स ने क्यों स्टार्ट किया था? ताकि रॉ मटेरियल फटाफट इंडिया के अलग अलग पार्ट से मुंबई सी पोर्ट तक पहुंच सके। बहुत सारे जो सी पोर्ट थे फटाफट वहाँ तक डिलीवर हो जाए, तो फटाफट वो लोग इंग्लैंड ले जाएं और उसको रिफॉर्म करें। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट करने के लिए उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए इंडियन रेलवे स्टार्ट की थी, ना कि हमारे लिए। ओके, एंड इवन दे स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ऑल्सो, एंड एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस ऑल्सो गोइंग ऑन। उन्होंने हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी बहुत कुछ किया, प्रिंटिंग प्रेस फॉर्म किया। ओके, एंड बट कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़पेपर का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो रेलवे का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। रीज़न, बाद में हम लोगों ने ये सब रिसोर्सेज यूज़ किए और हम लोगों ने एक दूसरे के सामने मतलब मैसेज स्प्रेड किए और हमारे ये आगे जाके बहुत काम में आए। ओके, सो पोस्टेज एंड टेलीग्राफ भी स्टार्ट हुआ था एंड ऑल दैट। सो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन से क्या हुआ कि जो इंडिया के लोग थे ना अलग अलग पार्ट में, वो रेलवे से ट्रैवल करते थे, तो उनको पता चल गया कि भाई सब जगह इंडिया में एक ही हाल है, ब्रिटिशर्स से सब लोग परेशान हैं। तो लीडर्स फॉर्म हुए, लीडर्स को फटाफट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना है तो रेलवे से कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ये चीज़ बहुत वर्कआउट की। ओके, नाउ हियर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ गिवन टू यू। मेक अ लिस्ट ऑफ द लीडर हु हेल्प इन अरोजिंग नेशनलिज्म आफ्टर द एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय। ओके, and here some question answer are given to you which we are going to discuss in our next session. Hope so you will like it. Thank you very much. Bye.